Okay, am I audible now? I think. So Yes, sir. now starting of this Java Servlet, but this is not including in your first itself. Java Servlet से पहले तक मतलब जो अभी तक पढ़े हैं up to JavaScript, actually the mid-sem syllabus, first mid-sem syllabus. But after that, we are starting in Java Servlet. So Java Servlet basically, again, it is not very familiar to you and many people. The Java Servlet is not very popular and not very familiar सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली जो चीज जावा सर्वलेट से हम लोग कर सकते हैं, सेम चीज सिमिलर थिंग हम लोग कर सकते हैं, सेम थिंग हम लोग कर सकते हैं थ्रू जेएसपी ऑल्सो। जेएसपी से हम लोग वही चीज कर सकते हैं। तो तुम लोग जेएसपी ज्यादातर फॉलो करते हो, जावा सर्वलेट नहीं फॉलो करते। तो ये जावा सर्वलेट अगेन प्लीज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। This is server side program. That means from server actually these pages are saved and we have to fetch. Sir, your voice. Yes. Yes. Bolo. Sir, your voice is crumbling. Okay. Sir, your voice is crumbling. Now okay. Yes, sir. Okay, that is a network issue, I think so. So please, ये जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, that server side programming means whenever you are this programming is done in server, this server PG pages are done in server, and whenever you are trying to fetch the server, you have to go to the request on some devices, and that actually run the program, and it dynamically generate a page. That is, for each request it will generate the page automatically. It will generate the page. That is, एक program language server side में लिखा हुआ है, and whenever you are requesting something, according to that value it generates the pages and it comes to your page. That is, जैसे कि जीमेल खोलते हो, या जो भी मान लो तुम लॉगिन करके फेसबुक खोलते हो, लॉगिन करने के बाद जो पेज आता है दैट इज डायनामिक। ये क्या तुम्हारे लिए अलग, मैं एक बार बोला था शुरू में कि ये तुम्हारे लिए अलग, मेरे लिए अलग, सबके लिए अलग अलग पेज बना हुआ है। नो, so that means whenever you are requesting something through browser to the server, it will go to the server and it will see that particular value, तुम्हारा आईडी, तुम्हारा पासवर्ड ये देखा, उस वैल्यू से मैच किया, और according to that value it will generate the page instantly. It will generate the page and it will send to you. That is the basic idea of server scripting. Automatically it will generating the page. तो इस पेज को बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस है, जैसे कि PHP सर्वर साइड पेज बनाने के लिए यूज होता है, C# सर्वर साइड पेज बनाने के लिए यूज होता है, .NET, VB.NET, ASP.NET सर्वर साइड पेज बनाने के लिए यूज होता है, बट दैट इज नॉट including in your syllabus. Your syllabus have two things, basically two languages. One is Java Servlet and second is JSP. अब दोनों सिमिलर है. Why these two are in your syllabus? Because both are Java based. That means Java Servlet भी Java पे ही डिपेंडेंट है और JSP भी Java पे ही डिपेंडेंट है. तो JSP and Java Servlet दोनों सिमिलर है, but again please try to understand these two have very major difference. तो जो टास्क सर्वलेट से तुम कर सकते हो वो सेम टास्क JSP से भी कर सकते हो, JSP से भी कर सकते हो. तो JSP ज्यादा फैमिलियर क्यों बन गया और जावा उतना फैमिलियर क्यों नहीं बन पाया? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी मच. तो ये जावा सर्वलेट बेसिकली ये जावा पेज मतलब प्रोग्राम होगा जावा का. Inside that Java, you are importing some HTML pages.
inside that Java, you are importing some HTML pages. Not only HTML, that's dynamic programming also. Some dynamic programming you have, that is जो पेज तुम बनाओगे वो है जावा पे, प्लेन जावा पे, बट जावा के अंदर तुम कुछ HTML का कॉन्सेप्ट घुसाओगे, डायनामिक वेब पेज का कॉन्सेप्ट घुसाओगे. So that's the thing actually Java Servlet will do. But JSP, what JSP will do? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे JSP यूनिट नंबर 4. JSP में क्या होगा? सिंपल, इट इज ए HTML पेज, नॉट जावा पेज, इट इज ए HTML पेज. HTML पेज के अंदर हम लोग घुसाएंगे जावा कोडिंग. HTML के अंदर जावा होगा. दिस इज JSP. Servlet means it is Java. Inside Java, HTML is there. So which one is better? Up to you. तुम्हें क्या लगेगा कौन सा हम लोगों को करना सही है? ऑब्वियसली तुम लोग प्रेफर करोगे HTML पेज, क्योंकि इजी है, समझना भी इजी है और प्रोग्रामिंग लिखना भी इजी है. बिकॉज HTML पेज इज देयर, HTML पेज के अंदर कुछ जावा कोडिंग लिखो, दैट इज JSP. एंड सर्वलेट मींस यू हैव जावा प्रोग्राम, और जावा प्रोग्राम के बीच में तुम कुछ HTML पेज होता है. तो ऑब्वियसली जावा प्रोग्राम करना हार्ड है मेरे लिए, और JSP HTML करना आसान है. तो कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा घटा दिया गया JSP में, एंड दैट्स व्हाई JSP becomes very popular, Java Servlet not. But please try to understand, कोई भी JSP पेज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, JSP जावा सर्वर पेजेस, इसके बाद ही मैं पढ़ाऊंगा, कोई भी JSP पेज डायरेक्टली रन नहीं हो पाता है. It will convert into the Java Servlet page and Java Servlet will run. So please try to understand very carefully. This is very interesting thing. Java Servlet page में वो convert होता है, so that JSP पे तुम JSP पे लिखो, लेकिन JSP जैसा रन नहीं होगा. JSP first converted into the Java Servlet, and that is the importance of Java Servlet. First it will convert it into the Java Servlet, and Java Servlet will actually run. तो प्रोग्राम, ये कंप्यूटर के लिए कौन सा आसान है? सर्वलेट लिखना. बिकॉज JSP पेज को तुम अगर कन्वर्ट करने जाओगे, दैट इज ए टाइम टेकन पार्ट. So first computer will convert it into the JSP to Java Servlet page, and Java Servlet page will run. That is the thing you have to maintain, and so Java Servlet is, that's why it is important. Servlet तुम्हें समझना होगा इसीलिए, क्योंकि ये पहले Java Servlet में कन्वर्ट होगा, बट दोनों काम सेम करेगा. Servlet भी जो काम करेगा, JSP भी वही काम करेगा. So that is the thing, that is the importance of Java Servlet. जावा सर्वलेट पेज कभी भी डायरेक्टली रन नहीं, सॉरी, JSP पेज कभी भी डायरेक्टली रन नहीं होता. JSP फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द जावा सर्वलेट एंड देन इट विल परफॉर्म. तो बेसिकली जावा सर्वलेट पेज में इनिशियल इंट्रोडक्शन तो तुम्हें बता दिया. सर्वलेट इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच क्रिएट वेब एप्लीकेशन, यूज्ड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, बट व्हिच टाइप? डायनामिक. Servlet is an API that provides many interfaces and classes including the documentation. That means ये एक API है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है. दैट इज जो एप्लीकेशन तुम क्रिएट कर रहे हो, जो प्रोग्रामिंग तुम लिखोगे, इस दोनों के बीच में जो काम कर रहा है, ये तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है कुछ क्लासेस, कुछ पैकेजेस, एवरीथिंग. जो जावा पैकेज है, जावा क्लासेस है, वो इसमें इंक्लूड करता है. तो ये API है. Servlet is giving that environment to program to create the web pages. So Servlet is an interface that must be implemented by creating any servlet. So this thing please try to understand. Java Servlet basically is a Java program. ये basic I think तुम्हें समझना है कि Java Servlet is a basic Java Servlet basically is a Java program that you are using to create the dynamic web application.
Simple dynamic web page. This is the line. Servlet web component that deployed on the server to create dynamic web pages. So that means सबके लिए अलग अलग नहीं बनेगा. एक सर्वर पेज सबलेट पेज तुम क्रिएट करके रखोगे, वैल्यू देखा, उस वैल्यू को कैच किया, उसके हिसाब से वो जनरेट किया पेज एंड इट विल सेंड टू द. अब किससे कैसे सेंड होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे ये सेंड हो. तो ये जो रिसीविंग एंड सेंडिंग के लिए, सो दैट द थिंग सिंपल दिस इज द थिंग. फर्स्ट वन, यूजर विल रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर पेजेस, वेब पेजेस, response generated at runtime. So ये generate किया गया runtime and it will create the web page and that web page will send to the client directly. That is the basic funda of servlet, not servlet. This is a web dynamic web page, basic funda of server side. सर्वर साइड की थी, ये सर्वर में तुम्हारा पेज रखा हुआ है, सर्वर में ये पेज रखा हुआ है, तुम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सर्वर में जाके ये डायनामिकली पेज क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद दैट विल सेंड टू द क्लाइंट. बेसिक थिंग इज दिस. कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करो यही चीज होगा. बट अगर तुम जेएसपी यूज कर रहे हो इन सर्वर, फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इट टू द सबलेट, देन इट विल जनरेट इट एंड देन इट इज सेंड टू द क्लाइंट. बट अगर तुम सर्वलेट यूज कर रहे हो, टोटल सर्वलेट में ही लिख रहे हो सारे प्रोग्रामिंग, then it directly goes to the page and it will generate it and it will send it. कोई कन्वर्जन यहाँ पे नहीं होगा सर्वर में, कोई कन्वर्जन यहाँ पे नहीं होगा. So that's the thing, please try to understand this. So this is a basic thing of Java Servlet. Now CGI, Common Gateway Interface. Now ये कैसे ये HTTP request काम करता है, please try to understand. ये CGI बहुत पुराना टेक्नोलॉजी. शुरू में अच्छा से समझना, ये CGI शुरू में CGI एक्चुअली वो जो सेंडिंग और रिक्वेस्ट, सेंडिंग और एक्सेप्टिंग, ये जो काम है ये काम कर रहा था CGI. और वो जो सेंड करने का सर्वर से फिर क्लाइंट के पास सेंड करने का जो काम है ये CGI करता था, ये इंटरफेस करता था. एक गेटवे था जिसके थ्रू तुम सर्वर में एंट्री करोगे और सर्वर से वो रिक्वेस्ट करके वो सर्वर पेज जनरेट करके फिर ये एंट्री के पास भेजेगा, एंट्री विल सेंड टू द क्लाइंट. तो कॉमन गेटवे इंटरफेस बेसिकली दिस इज ए HTTP रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल से लेता था और रिक्वेस्ट करके प्रोसेस करता था. दैट्स द सिंपल टास्क कॉमन गेटवे इंटरफेस है. बट पुराना टेक्नोलॉजी है CGI. Nowadays it is not by CGI, it is by thread. So sublet actually using threads. Sublet will not using the common gateway interface. कॉमन गेटवे इंटरफेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? इट्स वेरी स्लो, लाइट वेट नहीं है, बहुत भारी प्रोसेस है ये. तो ईच रिक्वेस्ट इट स्टार्ट्स ए न्यू प्रोसेस, नॉट ए थ्रेड. न्यू प्रोसेस इट विल जनरेट एंड इट विल प्रोसेस जनरेट करेगा, मतलब कि हर बार प्रोसेस जनरेट करता था और प्रोसेस जनरेट करने के बाद वो कुछ पेज जनरेट करता था, फिर ये प्रोसेस से सेट होता था. तो दिस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस. बेसिकली ये CGI यूज करता था C++ नॉर्मल लैंग्वेजेस, जावा को यूज नहीं करता था CGI. कॉमन गेटवे इंटरफेस में ये बेसिकली C++ यही सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता था. ये जो रिक्वेस्ट सेंड इसको एक्सेस करने के लिए हर बार वो क्या करता था, प्रोसेस जाता, एक प्रोसेस क्रिएट होता और प्रोसेस डेफिनेटली क्रिएट होगा तो उसके लिए मेमोरी लगेगा, उसके लिए हर चीज लगेगा. प्रोसेस क्रिएट करता था और प्रोसेस क्रिएट करके जनरेट करके फिर सेट करता था. तो दिस इज द कॉमन गेटवे इंटरफेस. ये नॉर्मल बहुत पुराना टेक्निक है. सो सी हियर द थिंग, CGI कैसे काम करता था. देखो HTTP रिक्वेस्ट आया, सर्वर के पास गया, सर्वर CGI सेल में भेज देता. अब CGI सेल से वो रिक्वेस्ट ग्रांट होता था और CGI सेल एक्चुअली हर क्रिएट के लिए एक प्रोसेस क्रिएट करता और प्रोग्राम से वो जो प्रोग्राम है तुम्हारा, उस प्रोग्राम को ये यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करता था ये CGI में और CGI will convert it into the then request will be sent. This is a very processor load becomes very high. Processor बहुत लोडी हो जाता. That's why it is become slow. CGI ये पुराना टेक्निक था, but nowadays it is using disadvantage of CGI. So this is very slow. यहाँ पे लिखा हुआ है, if the client increases, it takes time to sending response because very slow it is. For each request, it starts a process. Web server is limited to start processes because web server बहुत सारे process एक साथ नहीं कर पाएगा because this is also a very hard software, very high heavy software. So that is the thing. So C++ यूज करता था. मैंने बोल चुका हूँ. This uses platform
languages like C, C++, etc. So that's why it is very slow. These are the disadvantage of CGI. Common gateway interface. But ये शुरू में देखो जब सर्वलेट आया था, ये शुरू में यूज करता था तो ये यूज होता था. But nowadays सर्वलेट क्या कर रहा है? थ्रेड यूज कर रहा है. So here now web container creates thread for handling multiple requests in servlet. So it will create a thread, not thread means lightweight process. मैं जावा में पढ़ाया था. Even operating system में भी तुम पढ़े. Thread means lightweight processes. Not उसके लिए हमेशा ये फिजिकल मेमोरी स्पेस लेगा. ये उसके लिए स्पेसिफिक मेमोरी एक्सेसिंग इज वेरी टफ वन. लाइटवेट प्रोसेस एक्चुअली क्या करता है? थ्रेड क्या करता है? जो इसके नियरेस्ट मेमोरी लोकेशन है, जैसे ये हो सकता है कैश मेमोरी हो सकता है रजिस्टर हो, ये सारे जगह में ये तुरंत जाके एक्सेस कर लेगा. लाइटवेट प्रोसेस वो मेमोरी में नहीं जाएगा. अभी तुम लोग अभी शायद वहां भी पढ़ रहे हो ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन Yes, sir. पढ़ रहे हो ना, तो उसमें Yes, इस sir. मेमोरी पोर्शन में मैम सर अगर आई थिंक समझाए मेमोरी में सबसे मेमोरी हायरार्की जब पढ़ाते हैं, सबसे छोटा मेमोरी है रजिस्टर, उससे बड़ा मेमोरी है कैश मेमोरी, इसके बीच में रहेगा. Cache. कैश मेमोरी के उससे बड़ा मेमोरी है रैम, जो मेन मेमोरी है, उससे बड़ा मेमोरी आएगा तुम्हारा हार्ड डिस्क. तो ये जैसे मेमोरी हायरार्की है, ये मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर सबसे फास्ट है, and that's why its size is also very small. कैश मेमोरी थोड़ा साइज इंक्रीमेंट किया बट प्रोसेस थोड़ा डिले करेगा. उससे ज्यादा फास्ट है, उससे ज्यादा स्लो है रैम उससे भी स्लो है, और रैम से ज्यादा स्लो हार्ड डिस्क सबसे स्लो है. और मेमोरी एक्सेसिंग इज द मेन पॉइंट. एक्चुअली मेमोरी एक्सेसिंग का टाइम अगर तुम घटा दो, इट बिकम्स फास्ट एक्चुअली. तो अगर मैं थ्रेड से ही वो काम कर, अगर मैं ये रजिस्टर से ही वो काम कर ले, छोटा जो रजिस्टर है वो रजिस्टर से ही सारे काम कर ले, तो इट बिकम्स लाइटवेट. तो थ्रेड एक्चुअली वही करता है, टेम्पोररी मेमोरी एलोकेट करता है, इट विल डू द टास्क एंड इट विल. और खूब अगर बहुत ज्यादा मेमोरी का जरूरत हो, इट विल गो टू द कैश मेमोरी एंड कैश मेमोरी में जाके वो काम करके फेंकेगा. इट विल नॉट एक्सेस द ज्यादातर मेन मेमोरी. So that's why thread becomes lightweight. Thread is lightweight process. तो यहाँ पे प्रोसेस के बदले थ्रेड को यूज करना स्टार्ट कर दिया. सर्वलेट एक्चुअली थ्रेड को यूज करना स्टार्ट कर दिया. तो इट बिकम्स फास्ट. मल्टीपल एक्सेस अगर होगा, बहुत सारे सर्वर में बहुत सारे अगर रिक्वेस्ट आएगा, वेरी फ्रीक्वेंटली इट विल वर्क. तो लाइटवेट. तो मेमोरी एरिया देखो, कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करेगा, लाइटवेट, very and cost of communication between threads are very low. So these are the advantages subnet got, and that's why many this subnet में ज्यादा जावा टेक्नोलॉजी में ज्यादातर फोकस आ गया. और that's why ये सारे वेब टेक्नोलॉजी पेजेस है वो सब जावा सबनेट या जेएसपी को यूज करने लगा. बिकॉज एक जावा का फायदा सिक्योरिटी, जावा इज वेरी सिक्योर लैंग्वेज. जावा का फायदा तो है ही सारे लैंग्वेजेस के, और उसके साथ साथ ये भी एक बेनिफिट हो गया, सबनेट ज्यादातर थ्रेड यूज करेगा. तो यार थ्रेड यूज करेगा, थ्रेड विल एक्सेस द सेम सबनेट. सर्वर के अंदर थ्रेड बनेगा, नॉट द प्रोसेस. सीजीआई इंटरफेस यहाँ पे नहीं होगा. सो प्रोसेसर लोड वेरी लो हो गया. इतना देर दूर था, इतना घटा दिया गया प्रोसेसर लोड. So that is the benefit. Now basic benefits of servlet again. This is the Java. So first one, it is very better performance. First benefit जो मैंने अभी समझाया, it uses creates thread for each request not process. That is a most important thing that comes in servlet. Portability. Java is a portable language. I told you Servlet is a Java language, so that means this is also portable. ये portability, robust and secure, इसका बारे में I think तुम्हें समझाने का जरूरत है. Robust means Servlet are managed by JVM and don't need to worry about memory leak, garbage collection, etc. So all these things, all the Java का जो भी features है, that all the features it includes.
जेएसपी उतना पूरा नहीं करेगा, बिकॉज जेएसपी में जावा पेज के अंदर एचटीएमएल नहीं है, एचटीएमएल के अंदर जावा है। तो दैट्स व्हाई ये रोबस्ट, पोर्टेबिलिटी, सिक्योर, ये चीज को बनाने के लिए हमको जेएसपी को फिर सबनेट में बदलना पड़ता है। ये चीज जेएसपी प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज जेएसपी इज नॉट ए जावा प्रोग्राम, इट इज ए एचटीएमएल प्रोग्राम। इनसाइड एचटीएमएल जावा इज रनिंग, but it is a java program, inside java html is running. So that is the disadvantage of, that is the two things, JSP and subnet. तो JSP तुम्हारे लिए फायदेमंद हो गया कि हाँ हम JSP में लिखेंगे, बट प्रोग्राम के लिए, कंप्यूटर के लिए JSP अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि ये सारे पोर्टेबिलिटी, रोबस्ट, सिक्योरिटी ये नहीं दे पाता है। So that's why it will convert it into the JSP sublet, and then sublet will run. So for these benefits, JSP ये सब चीज नहीं दे पाता है, and that's why first you had to convert it into the Java. So both के लिए, दोनों के लिए ये अच्छा चीज बना दिया गया, ये JSP and Java Servlet, ये दोनों को कंबाइन करके दोनों के लिए अच्छा फायदामंद बना दिया गया। फर्स्ट तुम्हारे लिए तो फायदा है, you write it into a JSP and it will be converted automatically into the Java Servlet, and then Java Servlet will run. JSP directly cannot run. So both the computer and as well as you, but इसके बीच में एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, that is JSP को कन्वर्ट करना पड़ रहा है Java Servlet पेज में। That thing you should remember. Then we can move towards the next part, that is what is Java Servlet now. Java Servlet, please try to understand. Java basically मैं क्या बोला था, ये basically दो इस पर्टिकुलर पेज को तुम थोड़ा देर में पढ़ो तो अच्छा है। एक्चुअली ये सर्वलेट एक पैकेज है जिसको हम लोग सारे सर्वर पेज को बनाने के लिए यूज होगा। तो बेसिकली मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, इट इज ए जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे पैकेज होगा, यहाँ पे मेथड्स होगा, यहाँ पे जो जावा वाला जो फंक्शंस है, ऑल दिस थिंग्स इट हैव। डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए हमको जो चीज चाहिए, बट बेसिकली इट इज ए जावा प्रोग्राम। तो जावा का बेसिक नेचर इट कैन नॉट चेंज, इट हैव पैकेजेस। तो उस पैकेज कौन सा यूज होगा, java.servlet। दिस इज अ पैकेज जिसके अंदर सारे चीज होगा। इसके अंदर java.servlet http प्रोटोकॉल के लिए ओनली http पैकेज, servlet.http। तो इस पैकेज के अंदर सारे जो भी पेज बनाना होगा सर्वलेट पेज, इस पैकेज को तुम्हें इंक्लूड करना होगा, java.servlet, इस पैकेज को तुम्हें इंक्लूड करना होगा। नाउ इसके बी इन अंदर डू गेट, डू पोस्ट मेथड रहेगा, डू पुट, डू डिलीट मेथड रहेगा, एंड डू ऑपरेशन ट्रेस, ये सारे मेथड्स होंगे। बेसिकली यही मेथड्स को हम लोग ज्यादातर रीयूज करते हैं। ओवरराइड, दैट्स व्हाई दिस टर्म इज यूज्ड। बेसिकली यही चीज हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जाएंगे, ये कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, मैं एक प्रोग्रामिंग के साथ मैं दिखाऊंगा। बट अभी फिलहाल HTTP पोस्ट के लिए डू गेट, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट, ये सारे आएगा, डू ऑप्शन ट्रेस, ये सारे हम लोग को ओवरराइड करने का जरूरत पड़ेगा। यही सारे मेथड्स जनरली हम लोग यूज करते हैं, और नॉर्मल मेथड्स, ये सारे मेथड्स पहले से ही डिफाइंड है, बट इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। दैट मींस इट इज ए इंटरफेस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज ए इंटरफेस पहले से क्रिएटेड है। एक बार जावा वाला इंटरफेस याद करो तो, इंटरफेस हैव नो मेथड बॉडी। एक बार याद करो, इंटरफेस हम लोग, इट इज ए क्लास टाइप थिंग, क्लास था ये, क्लास के अंदर, लेकिन वो इंटरफेस के अंदर कोई मेथड का डिक्लेरेशन नहीं होगा। तो बेसिकली हम लोग इंटरफेस के थ्रू ये बनाएंगे। जावा सर्वलेट का जो भी होगा वो इंटरफेस के थ्रू होगा, एंड इंप्लीमेंट्स हम लोग करेंगे, नॉट एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स की वर्ड्स यूज नहीं होगा, इंप्लीमेंट ज्यादातर यूज होगा। तो दिस आर द थिंग जो तुम्हें समझना है। नाउ दिस आर द थिंग जो हम लोग को तीन चीज जावा के सर्वलेट के अंदर होगा। फर्स्ट इज init function, init method, destroy method and service method. Service method is inside the destroy, init and destroy के बीच में सर्विस काम करेगा। एक्चुअली ये इस तरह का होना चाहिए था, init service and destroy, ये इस तरह से लिखना चाहिए था, init service and destroy। दिस इज माय मिस्टेक, init पहले, उसके बाद सर्विस, देन destroy comes। आई एम चेंजिंग इट।
Okay, wait for 1 minute because it is wrong, actually wrong. पहले init काम करेगा, उसके बाद service काम करेगा. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा. पता है हम खत्म किए उसको. Just wait 1 minute. Okay, now it is okay. So basically ये तीन चीज है, init method, service method, then destroy. ये चीज पहले समझो. तो ये तीन चीज पे ही डिपेंडेंट है पूरा सर्वलेट. Full servlet is dependent on these three things: init method, service method, and destroy. Is that clear? So एक init method होगा जिसके थ्रू जावा सर्वलेट को इनिशियलाइज करोगे. उसके बाद एक सर्विस मेथड होगा जिसके थ्रू जावा HTTP के थ्रू URL के थ्रू पहुंचेगा सर्वर में. Server will provide that service. Server will provide that service and destroy. जो सर्वलेट पेज तुमने जनरेट किया है, lastly it will call the destroy page. That means पेज को destroy करने के लिए ये पेज बनेगा. So that means initialization, पेज initialize होगा, then it will create the page, that is the service, and it will send to the user जो रिक्वेस्ट किया है. It will send to the user by service method, and lastly after doing service, destroy method will call, and destroy method actually works to destroy the class. Is that clear to you? अब ये कैसे ये काम करेगा? बेसिक ये तीन चीज है, बेसिक ये तीन चीज पे ये फोकस्ड है. अब ये कैसे काम करेगा? Now see it. इसके लिए हमको पढ़ना होगा लाइफ साइकिल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जावा सर्वलेट लाइफ साइकिल ये आएगा ही एग्जाम में. अभी से मैं बता दे रहा हूं, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में. सर्वलेट लाइफ साइकिल, सर्वलेट लाइफ साइकिल. सो सर्वलेट लाइफ साइकिल बेसिकली हैव थ्री थिंग्स. मैंने बोला अब यहाँ पे दो चीज छूट गया, दैट इज डू पोस्ट और डू गेट. डू गेट और डू पोस्ट. तुम्हें पता है गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? एनी वन ऑफ यू? आई थिंक किसी ना किसी को पता है. एनी वन ऑफ यू? अभी साहब पता है गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? Yes, well, you in the URL, in the post method, in the URL the content is visible. Means पोस्ट में विजिबल है, उल्टा बोलते हैं. yes, उल्टा get बोलते हैं. visible. गेट में विजिबल है और पोस्ट में विजिबल नहीं है. क्लियर? Yes, sir. गेट में विजिबल है, पोस्ट में विजिबल नहीं है. गेट मतलब जो तुम मान लो योर फील्ड्स जैसे कि पासवर्ड, यूजर नेम, जो भी
दे रहे हो, जो भी तुम भेज रहे हो, वो डेटा तुम जैसे ये किए, जैसे ही क्लिक किए, दैट मींस वो वैल्यू जाएगा, जब HTTP रिक्वेस्ट के पास जाएगा डेफिनेटली, वो HTTP जब रिक्वेस्ट के पास जाएगा उस टाइम पे URL में तुम्हारा जो कॉन्टेक्स्ट है, आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है, ये दिखाएगा ऊपर। तो पासवर्ड अगर दिख ही गया URL में, क्या फायदा हुआ पासवर्ड देने का? URL में, please try to understand, whenever you are requesting some pages, when you click submit या login button, it goes to the server and through URL it will pass get method, but post में ये show नहीं होगा. So that means whenever you are hidden information you are going to give, you use post method. Whenever not any confidential information, then use get method. But get method is lighter than post. Get method थोड़ा फास्ट वर्क होगा, पोस्ट मेथड फास्ट वर्क नहीं होगा. बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, whenever you have to give a hidden information in your form में कुछ hidden information अगर तुम भेजना चाह रहे हो, then you should give post method, otherwise you can give get method. These are the two service there this sublet is actually giving. So init, service and post, destroy. These three actually service it have. Now in Servlet API lifecycle methods have three things: init, service and method. तो क्या क्या करेगा init method? Called when Servlet is instanted, that means it is initiated. ये spelling mistake नहीं ना, इसका meaning मुझे नहीं पता, तो ये spelling mistake I think मुझे लग रहा है. So it is initiated. जब भी ये initiate किए करना होगा, अगर इसका meaning कुछ है तो that's okay, but otherwise इसका meaning है initiated. Whenever you call the sublet page, it will call, and init method actually takes all the connections, do all the connections. जैसे कि इसके साथ साथ क्या क्या पेजेस के साथ जोड़ना होगा, या क्या क्या तुम्हारा जो ODBC JDBC से अगर जुड़ा हुआ है इसके साथ पहले जोड़ेगा, तो ये सारे काम, ये जो कनेक्शन जनरेट करेगा, दैट init method will. सर्विस मेथड, जो काम तुम करना चाह रहे हो, जैसे कि पेज जो जनरेट हो रहा है, ऑल द मेथड्स एक्चुअली गिवन इन सर्विस मेथड, कि कैसे वेब पेज जनरेट होगा यहाँ पे. तो HTML कंटेंट्स बेसिकली हैपेंस इन सर्विस मेथड. HTML जो भी कंटेंट्स तुम डालना चाहते हो, बेसिकली इट हैपेंस इनसाइड द सर्विस मेथड. सो init, it is initialized, service it will give, so that is that HTTP जो भी तुम लिखोगे यहाँ पे एक्चुअली तुम लिखोगे, सर्विस मेथड में तुम लिखोगे. So it is actually creating the pages and then it will send it. Now destroy, call when server shut down. That means whenever you have done the task, you are clicking cross button dynamically. जैसे ही log out किया, log out will call destroy function. जो पेज तुमने generate किया, that page will be destroyed. And that's why back करोगे तो फिर से ये login नहीं होता है, क्योंकि destroy फंक्शन अगर यूज नहीं करोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा. I think this is clear to you. So destroy means जैसे कि साइन इन करके छोड़ दिए, उसके बाद फिर बैक किए, लॉगिन हो जाता है तुम्हारा पेज, फिर से नहीं होता है. क्यों? Because destroy is already called. Destroy means page already destroyed. That is the use of destroy. But अगर destroy तुम यूज नहीं करोगे, वो पेज जनरेट होकर रह जाएगा. जैसे ही फिर बैक करोगे तो तुम्हारा लॉगिन हो जाएगा, कॉल हो जाएगा. So that is the thing you should understand. So init method, service method and destroy method, these three have life cycle inside the life cycle. Now see it, what is the way. In short I am telling, इस एज से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, but in short मैं दिखा रहा हूँ. Sublet container is there, works as a HTTP request. जैसे ये request 1, request 2, request 3 ये आ रहा है, so this required response जो भी आ रहा है, इस required response से ही ये generate हो रहा है. See, it is एक thread, दो thread generate करेगा. ये it is creating the thread, that is इस thread pool का काम है इस thread को generate करना. इस thread pool will work. Here it is a thread pool. Thread pool will create the thread. जब भी जरूरत होगा thread create करेगा. तो first initiate the sublet. Sublet initiate कर दिया. उसके बाद init method कॉल करके ये initialize परफॉर्म हो चुका है. Initiate करने के लिए मुझे सबसे init method कॉल किया गया, it is called platform initialized.
नाउ तो ये क्या क्या काम करेगा इसके लिए, आई थिंक इन डिटेल्स नेक्स्ट डे ही पढ़े बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 2 मिनट है तुम्हारे साथ, तो 2 मिनट में ये कंप्लीट नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट डे आई विल कंटिन्यू दिस वन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत सारी चीज समझना होगा तुम्हें यहाँ पे. और यही तुम्हारा सर्वलेट लाइफ साइकिल जब भी प्रोग्रामिंग में आएगा, सर्वलेट लाइफ साइकिल जब भी तुम्हारा एग्जाम में आएगा, दिस एक्चुअली यू हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग, एक्चुअली यू हैव टू draw it and you have to explain it. 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सबलेट लाइफ साइकिल, कैसे ये टोटल सबलेट रन होता है, टोटल थिंग हियर इट इज गिवन, so it is not completed by 2 minutes. so ठीक है, इसको हम खत्म करते हैं यहीं पे, और हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे, कल ही है, मैं एक क्लास नहीं लिया था आई थिंक बुधवार को, तो उस क्लास को मैं लूंगा, कल इस क्लास को इस यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ. इज दैट क्लियर? यस सर. टास्क में पढ़ाऊंगा तो समझ में एकदम नहीं आएगा, उससे अच्छा हम लोग बहुत आगे चल गए ऑलरेडी, हम लोग 3rd यूनिट में घुस गए, तो टाइम है मेरे पास, तो ये इसको हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं. ओके, अच्छा से समझना होगा इस चीज को. ओके चलो, थैंक यू. थैंक यू सर. कल हम क्लास लेंगे पॉसिबली 9 बजे से, नहीं तो 11:30 बजे से. ओके, 9 बजे से या तो 11:30 बजे से, दोनों में से कोई एक टाइम में मैं क्लास लूंगा कल. कोई प्रॉब्लम किसी को? नो नो सर. सर. बाय बाय.